Hello guys, what's up? I hope that you are all good, and in this video I'm going to tell you a story. So without wasting any time, let's just get into our story. So the story is about a young guy who just joined a corporate firm few days ago. While working there, he observed that people who were working there were not good. They were just taunting each other, they were just fighting each other, they were just finding mistakes in each other's work, they were trying to make each other to feel guilty and insulted. So the working condition there was not good. So after all these things, he started to get depressed, and after working for few months for the firm, he decided to resign because of these conditions. So the very next morning, he went to his boss cabin and gave the resignation letter. After reading it, the boss asked that why do you want to resign? So he gave all the reasons that we have talked about, that for what reasons he want to resign. After listening all the reasons, the boss asked the employee to do a task. The task was to take a round of corridor having full glass of water in hand. The condition was not even a single drop of water should be spilled out of the glass. So after it, the employee accomplished the task very perfectly. After it, the boss asked how you were able to do this task very perfectly. He answered that I was just focusing on the glass. So the boss says, just like you were focusing on your glass, if you will focus on your work, these type of unwanted people and unwanted things will automatically expelled out from your life, from your mind. So the boss explained in detail. The explanation was, the reason was that just like you were focusing on the glass, your main focus was just on the glass, so you accomplished the task very perfectly. If you will just focus on your work, so these type of people which you are imprecating, which you are complaining about, will automatically get expelled from your life and from your mind. You will not have enough time to focus on these type of people. He said later in any point of time, these type of unwanted conditions and environment will distract you from your goal, but you don't have to. Your main focus is to focus on your goal. The first main priority to achieve your goal is to not to get distracted, but to just focus on your goal. That's the main thing. एक बार हिंदी में भी बड़े अच्छे से समझा देता हूं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए. जो टास्क दिया गया था उसमें उसने सिर्फ ग्लास पे फोकस करा. बॉस का ये कहना था कि अगर तो ऐसे ही तुम पूरे शिद्दत के साथ अपने काम पे फोकस करोगे तो ऐसे जो लोग हैं ना जिनको तुम कोस रहे हो, इम्प्रिकेट कर रहे हो, वैसे लोग तुम्हारी जिंदगी से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे. तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम इन चीज़ों पे भी ध्यान दो. उन्होंने ये बोला कि लाइफ में ऐसे भी मोड़ आएंगे, ऐसे भी पड़ाव आएंगे जहाँ पे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सक्सेस ऐसी थोड़ी मिलती है. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आती हैं, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में. बट अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो हमारा मेन फोकस तो हट जाएगा ना. सिंपल होने का, अगर आपको सक्सेस पानी है, आपका मेन फोकस, मेन इंटेंशन, तो मेन फोकस, मेन गोल, मेन इंटेंशन तो यही होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ कि मुझे सिर्फ अपने गोल पे स्टक रहना है, उस पे ही कंसंट्रेट करना है, उसी पे ही फोकस करना है. कहानी का मॉरल बस इतना है, जैसे उसने ग्लास पे कंसंट्रेट करके अपना टास्क बड़ी परफेक्टली अकम्प्लिश करा था, वैसे अगर आप सिर्फ अपने गोल पे, अपने वर्क पे कंसंट्रेट करके
अगर आप ऐसा करेंगे, कंसंट्रेशन अपने वर्क पे लगाएंगे, तो आपका जो टास्क है वो बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दूसरी चीज़ों को कोसेंगे। होता है ना कि जब लोग फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। देखिए सक्सेस में तो अगर सक्सेस बनी तो चैलेंजेस तो मिलेंगे। अगर हम इफ़ वी विल जस्ट इम्प्रिकेट दोज चैलेंजेस और वी विल जस्ट गेट अफ्रेड ऑफ दोज चैलेंजेस, वी कांट गेट सक्सेस। क्योंकि आज ऐसे जीते जागते नमूने हैं इस दुनिया में, ऐसे भी सक्सेसफुल लोग हैं जो किसी टाइम में स्ट्रीट लाइट के नीचे नीचे बैठ के पड़े हैं। अगर वो कहते यार मेरे पास तो लाइट नहीं थी, मैं नहीं पढ़ पाया, अगर वो अपने आप को ही रीज़न देते, चैलेंजेस से भागते, उनसे डरते, तो क्या आज वो सक्सेसफुल होते? शायद नहीं। तो दोस्तों इस कहानी का सिर्फ एक ही मॉरल है कि आपके पास जो भी कठिन परिस्थितियां हैं या फिर जो भी चैलेंजेस हैं आपके सामने, जो आपके सक्सेस के पाथ को रोक रहे हैं, उनसे डरो मत, उन्हें कोसो मत, उनसे लड़ो और लड़ के आगे बढ़ो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपका सोचने का नज़रिया शायद बदले इस वीडियो से। और अगर आपको पसंद आई तो फिर आप इसे प्लीज़ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दैट्स टोटली अपॉन यू। आपको मुझे क्या सुझाव देने हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।